Okay. So your next chapter is quadrilaterals. ये भी बहुत easy chapter है. So all of you know what quadrilaterals are. What are quadrilaterals? Polygons having Four sides. ठीक है. Any polygon having four sides is called a Quadrilateral. quadrilateral. ठीक है. So polygon with four sides. ठीक है. So next polygons में what are the terms that you need to understand? So A, B, C, D are called vertices. Clear है क्या नहीं? ये तो पता है ना आपको? Yes, A, B, sir. C, D are called vertices. Okay. So lines joining opposite vertices are called what? Diagonals. Diagonals. ठीक है. Diagonals एक word है, आपको पता है क्या है? If you take A as the vertex, B and D are the adjacent vertices, C is the opposite vertex. Clear है? So adjacent vertices का मतलब समझना चाहिए. And opposite vertex. So every vertex will have one opposite vertex and two adjacent vertices. Clear है? Similarly, adjacent sides and opposite sides. ये भी समझ में आता है? If you take AB as the side, इसका adjacent sides क्या है? AD and BC are the adjacent sides. ये CD जो है वो opposite side है. Clear है? Similarly, adjacent angles, opposite angles. If you take A as the angle, these two are adjacent angles. ये जो opposite में है वो क्या है? Opposite angle. Clear है? Adjacent angles, opposite angles. Clear है? So ये terms जो है आपको पता होना चाहिए. अगर बीच में questions में आए तो you should be able to understand these terms. Clear है? So there is only one formula for this chapter, which is called angle sum property, which we have already seen in your polygons chapter. क्योंकि इसमें 4 sides है, angle sum कितना होता है? 360. So interior angle sum is equal to 360 degrees होगा. Yes, sir. Exterior angle sum कितना होगा? 360. 360. So exterior angle sum सबके लिए 360 है ना, कोई भी polygon के लिए. Yes, sir. Yes, sir. So quadrilateral में sum of interior angles is same as sum of exterior angles. Clear है? Sum of interior angles is same as sum of exterior angles. Easy? से note कर लीजिए. हम आगे Yes, sir. जाएंगे. Done. Sir, please wait. हो गया? Yes, sir. So इस Sir, please wait. चैप्टर में ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं है. चार क्वेश्चंस करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Because there is only one formula to apply. Yes, sir. Okay, first question देखिए. Sir, please show that page once again. क्या है बेटा? हाँ, नोट नहीं किया क्या? नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया. कर लीजिए. हाँ सर, हो गया. हो गया? सर पिछले चैप्टर पे टर्मिनोलॉजी का मतलब आप क्या बताए थे? क्या है? किसका? सर टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी का मतलब terms that will be used in this chapter.
Okay. इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स आपको पता होना चाहिए. डायगोनल्स का मतलब पता होना चाहिए. Yes, sir. एडजेसेंट एंड ऑपोजिट वर्टिसेस का मीनिंग पता होना चाहिए. एडजेसेंट ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चंस देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होगा. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. 3 angles of quadrilateral are 54 degrees, 80 degrees and 116 degrees. Find the fourth angle. ये पहला क्वेश्चन है. सिंपल है क्या नहीं क्वेश्चन? Yes. 110 degree. 110 degree. बहुत इजी है. लॉजिक क्या है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 degrees. So 54 degrees plus 80 degrees plus 116 degrees plus फोर्थ एंगल को x मान लीजिए. तो मिलके 360 डिग्रीज होना चाहिए. Yes, sir. Sir. So x is equal to 360 degrees minus 54 minus 80 minus 116 degrees. किया तो 110 डिग्रीज आ जाएगा. सही आंसर. सेकंड क्वेश्चन. Four angles of a quadrilateral are in ratio 2:3:5:8. So find the angles. So आपका angles का ratio मिल गया. You're asked to find the angles. Sir, one angle is 40 degree, 60 degree, 100 degree and 160 degree. Good. So कहाँ से start करेंगे? Let the angles be. Ratio दिया है ना बेटा. So you can Yes. think of angles as 2x, 3x, 5x and 8x. है ना? अगर ये रेशियो में है तो ये आप मान सकते हैं ना. Yes, sir. But according to angle sum property, according to angle sum property, 2x plus 3x plus 5x plus 8x is equal to 360 degrees होना चाहिए. This implies 13 plus 5, 18x is equal to 360. X is equal to 20. Yes. So this implies the angles are 40 degrees, 60 degrees, 100 degrees and 160 degrees. 2x, 3x, 5x and 8x. Clear है? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Next question. Yes, sir. Quadrilateral ABCD. ठीक है, एक quadrilateral ABCD है. Angle A is 115. Angle B is 45. Angle C is equal to angle D. Find angle C and angle D. निकाल सकते हैं? Yes, sir. ऐसे बेटा, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में. 115 degrees, Sir, angle C 45 is degrees. 100 degree and angle D is 100 degree. 100 degree. So C is same as D. So एक x है तो दूसरा भी 100. x है. Yes, sir. 100 degrees. So plus 2x is equal to 360 degrees.
So 2x is equal to 360 minus 160, 200 degrees. So x is equal to 100 degrees. degree. हो गया? Yes, So the sir. remaining two angles are 100 and 100. Sir, please wait. नोट कर लीजिए. कॉन्सेप्ट सर समझ में आ रहे? पेज हेजी हो गया. हाँ? सर पेज हेजी हो गया सर. हेजी हो गया क्या? अब बेटर है? नहीं सर. अभी भी हेजी है क्या? Sir. हाँ सर. एक सेकंड में देखता हूँ. अब बेटर है या? Yes, sir, it's clear only. Yes, yes, sir, it's clear. यानी और लाइट हो गया ना? अब थोड़ा सा डार्क हुआ? Yes, sir. हाँ Yes, सर अब sir. ठीक है. Yes, sir. गुड. सो 3 क्वेश्चंस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो रहा है बेटा. एक ही क्वेश्चन बाकी है और Okay. निकाल रहा हूँ ये पेज. Yes, sir. Okay, sir. So last question of this chapter. एक quadrilateral है. You have quadrilateral A, B, C, D. One angle is 60 degrees. This angle is 100 degrees. Okay. Now you have drawn. देखिए दो एंगल्स है. ये दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया गया है. ओके. इसका मतलब एंगल को हाफ हाफ करने वाला लाइंस. The bisectors of angle A and angle B are meeting at P. Question समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Bisectors of angle A and angle B meet at P. Find angle APB. So you have to find angle APB. ये वाला एंगल कितना है आप फाइंड करना है. So first हम क्या करेंगे? So let us take angle A. ठीक है. If you take this as angle A, because this is a bisector, ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा. सही है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If this full angle is angle B, this will be B/2, this will be B/2. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये angle bisectors. So Sir. first equation, A plus B plus 60 plus 100 is equal to 360 होना चाहिए. Yes. A plus B plus 60 plus 100 चारों मिला के 360 होना चाहिए. So A plus B कितना है? 200. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the angle sum property of quadrilateral. Next we are going to use the angle sum property of triangle. Triangle. So A/2 plus B/2 plus angle APB कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए. So angle APB is equal to 180 degrees minus angle A plus angle B by 2. So 180 degrees minus angle A plus angle B तो 200 है. 200 by 2 is 100 degrees. So 80 degrees is the answer.
सर और एक बार समझा सकते हो? सो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन समझ में आया? यस टू सर। एंगल्स आर गिवन, बाकी दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया गया है, दे आर मीटिंग एट P, व्हाट इज द एंगल? सो फर्स्ट जो है क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 100 प्लस 60 चारों मिला के 360 होना चाहिए। ये 160 सर हो गया, तो A प्लस B इज इक्वल 200 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ओके सर। Next we are using the angle sum property of triangle APB. Angle sum of triangle APB. एक छोटा ट्रायंगल है ना APB, उसमें एक एंगल A/2, दूसरा एंगल B/2, तीसरा एंगल P। ओके सर। तो A/2 प्लस B/2 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होना चाहिए। यस सर। तो A प्लस B तो 200 है ना, तो A प्लस B/2 कितना होगा? 100 हो जाएगा। यस सर। तो 180 माइनस 100 इज 80 डिग्रीज। क्लियर है? ओके सर। यस सर। नोट कर लिया? Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is about the chapter of quadrilaterals. Next chapter is an extension of quadrilaterals which is called parallelograms. क्या है? Parallelograms. Anyone know what a parallelogram is? Sir, a quadrilateral is called a parallelogram if both the pairs of opposite sides are parallel. सही है। So a quadrilateral is called a parallelogram. देखिए यूजुअली बेटा मैं पैरेललोग्राम को ऐसा लिखता हूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये Yes, शॉर्टकट sir. है, पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट है, ठीक है। A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel. इसका मतलब है ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए यहाँ बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। So the quadrilateral formed is called a parallelogram. Clear है? So the quadrilateral formed, बीच में एक quadrilateral है ना, इसको हम बोलते हैं parallel. Clear? तो parallelogram में the adjacent sides need not be equal. ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसा भी हो सकते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है, दिख रहे हैं? Yes, sir. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होता है या होने का जरूरत नहीं है? Should the adjacent angles be always equal or is it not necessary? No, sir. No, sir. It is not necessary, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो एक्यूट एंगल लग रहा है ना, Yes, sir. ये तो ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है, Yes, Yes, sir. sir. तो दोनों तो इक्वल होने का जरूरत नहीं है। Should the adjacent sides be equal? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है ना, adjacent Yes, sir. sides need not Yes, be sir. equal. Clear है? बट देखने में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लग रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? नाउ पैरेललोग्राम का भी स्पेशल केसेस है, देखिए। A parallelogram in which the adjacent sides are equal is called a rhombus.
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज rhombus. Sir. rhombus का मतलब है अगर एक पैरेललोग्राम में, देखिए ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होगा पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, क्लियर है? बट a rhombus is a parallelogram where the adjacent sides are equal. इसका मतलब ये a है तो मान लीजिए ये भी a हो गया, ये हो गया तो ऑब्वियसली ये भी a हो जाएगा। इसका मतलब चारों साइड्स क्या हो गया? Same. Equal. इक्वल हो गया। ओके, rhombus is a parallelogram where all sides are, तो स्क्वायर भी rhombus है? हाँ स्क्वायर भी rhombus। Square is a special case of rhombus, but all rhombuses are not squares, but all squares are rhombuses हो जाएगा, ठीक है? rhombus का मतलब क्या है? चारों साइड्स सेम होना चाहिए। सर वो जो प्रॉपर्टी बोलेगी all rhombus are not square rhombus, तो वो कैसे होता है? ये अभी स्क्वायर आया नहीं ना, पहले rhombus समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। पूरा सारा समझने के बाद हम देखेंगे कैसे क्या स्टेटमेंट्स। ओके, rhombus हो गया, नोट किया, Yes, sir. नोट किया। Yes, sir. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। देखिए एक rhombus है ऐसा, सॉरी एक पैरेललोग्राम है ऐसा। पैरेललोग्राम में इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बिकम 90 डिग्रीज, यूजुअली पैरेललोग्राम का एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज होने का जरूरत नहीं है। अगर पैरेललोग्राम का एंगल्स 90 हो गया तो इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। Rectangle. तो ए पैरेललोग्राम, ये सिंबल समझ में आ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. where each angle is 90 degrees is called a rectangle. Clear है? इसके बाद स्क्वायर, a parallelogram where all sides are equal and all angles are 90 degrees is called a square. समझ में आ रहे? स्क्वायर का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। इसका मतलब rhombus भी होना चाहिए, स्क्वायर भी, मतलब रेक्टेंगल भी होना चाहिए। समझ में आ रहे? सर सर आपने लिखा है स्क्वायर में पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सर वो पैरेललोग्राम होगा का रोम्बोस? नहीं, स्क्वायर जो है, स्क्वायर satisfies पैरेललोग्राम कंडीशन, रेक्टेंगल कंडीशन एंड rhombus कंडीशन, सबका कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। So a square can be called a parallelogram, a rectangle as well as a rhombus. समझ में? जैसा आप है, कौन सा स्कूल से? बनपुर रिवरसाइड स्कूल। क्या है? बनपुर रिवरसाइड स्कूल। हाँ, आप बनपुर रिवरसाइड स्कूल का स्टूडेंट है? यस सर। आप बनपुर रिवरसाइड का 8th क्लास का स्टूडेंट है? यस सर। आप बनपुर रिवरसाइड का 8th क्लास का कौन सा सेक्शन है? सी। सी सेक्शन का भी स्टूडेंट है ना? यस सर।
सो आप मतलब ऐसे जरूरत नहीं ना, अगर बर्नपुर का स्टूडेंट है तो 8th का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ रूल नहीं है ना. Yes, sir. सो यू आर गोइंग इनसाइड एंड इनसाइड. जैसा पैरेललोग्राम जो है आपका स्कूल जैसा है, उसके अंदर 8th क्लास जो है वो रेक्टेंगल जैसा है, उसमें सी सेक्शन जो है वो स्क्वायर जैसा है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. All students in 8th C are also students of BRS, Yes, sir. but all students of BRS are not students of 8th C, है ना? Yes, sir. BRS का सारा स्टूडेंट्स 8th C में होना चाहिए क्या? No, नहीं. बट 8th C का सारा स्टूडेंट्स BRS में तो होना चाहिए ना? Yes. वैसा वैसा लॉजिक यहाँ काम करेगा. देखिए, all squares are parallelograms, but all parallelograms need not be squares. क्लियर है? Okay, sir. जैसा all squares are rectangles, but all rectangles need not be squares. अगर आप इसको हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं, ये आप लॉजिकल रीजनिंग में आपको आता है. देखिए, मान लीजिए ये जो है, ये सर्किल जो है, मान लीजिए पैरेललोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मेरा रेक्टेंगल्स एंड रोम्बसेस दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर ही होगा. समझ में आ रहे? Yes, sir. एंड देयर आर सम फिगर्स व्हिच आर रेक्टेंगल्स एज वेल एज रोम्बसेस. ये जो अंदर है, ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Square. ये वाला एरिया जो है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आ रहे? Yes, sir. So all squares are parallelograms, but all parallelograms are not squares. समझ में आ रहे? All rectangles are parallelograms, but all parallelograms are not rectangles. Angles. All Okay, rhombuses are parallelograms, but all parallelograms are not rhombuses. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. अब ये पैरेललोग्राम्स कहाँ आएगा? एक और बड़ा सर्किल होगा जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पैरेललोग्राम्स आएगा. सही है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और Sir, बड़ा सर्किल होगा. polygons के अंदर quadrilateral. Polygons के अंदर quadrilateral. और बड़ा सर्किल होगा. ये सर्किल क्या है? पॉलीगन्स का. मतलब पॉलीगन्स के अंदर क्वाड्रिलेटर्स आएगा, क्वाड्रिलेटर्स के अंदर पैरेललोग्राम्स भी है और भी बहुत कुछ है क्वाड्रिलेटर्स. सही है क्या नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? ट्रेपीजियम्स आर quadrilaterals where one pair of opposite sides are parallel. क्या है? Quadrilaterals where one pair of opposite sides are parallel. समझ में आ रहे? ये किसका सिंबल है जो मैं लिखा था? Parallel. वो पैरेलल का सिंबल है. ठीक है? तो ट्रेपीजियम का मतलब है कोई एक साइड पैरेलल है, मान लीजिए, दूसरा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम. क्लियर है? तो ट्रेपीजियम का मतलब क्या है? दोनों साइड्स पैरेलल होने का जरूरत नहीं है. अगर कोई भी एक ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. क्लियर है? सो ट्रेपीजियम्स जो है कहाँ आएगा इस डायग्राम में? पैरेललोग्राम के अंदर. हाँ, पैरेललोग्राम को सर्किल करेगा ट्रेपीजियम्स.
समझ में आ रहा है? Because all parallelograms are trapeziums also. ट्रेपीजियम का एक ही कंडीशन है, कोई भी एक ऑपोजिट साइड का पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम में दोनों हो रहे हैं और अच्छा है ना। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मतलब ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या है, कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि बाकी दो साइड्स जो है पैरेलल नहीं होना है, वैसा कुछ नहीं है। So that's why all trapeziums are, sorry, all parallelograms are trapeziums also. Clear है? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मैं कुछ शायद गलत बोल रहा हूँ आपका डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही आप याद रख लीजिए। ठीक है, नॉर्मली बड़े होने के बाद ये डेफिनेशन जो है थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट अभी के लिए जो आपका टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है, a quadrilateral having exactly one pair of parallel sides is called a trapezium. Quadrilaterals where exactly बोल रहा है आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से, quadrilaterals where exactly one pair of opposite sides are parallel. इसका मतलब है एक साइड, एक पैरेलल साइड, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, बाकी दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहे? Yes, sir. आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से ट्रेपीजियम का ऐसा नहीं आएगा, ट्रेपीजियम का बगल में आएगा। क्लियर है? ये क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. ठीक है, नॉर्मली है तो बाद में एग्जैक्टली इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद रख लीजिए। ठीक है, सर क्वाड्रिलेटरल स्फीयर। ट्रेपीजियम कहाँ पे आया है वेन डायग्राम में? हाँ, कहाँ पे आया है ट्रेपीजियम? अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, पहला बड़ा ड्रॉ किया ना, बट अभी आपका डेफिनेशन के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल स्फीयर एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब दोनों पेयर्स पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम नहीं होगा डेफिनेशन के हिसाब से। So parallelograms are not trapeziums according to this definition. So इसलिए ट्रेपीजियम जो है वो बगल में ड्रॉ किया मैंने, तो पैरेललोग्राम से मिला नहीं रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम से अलग रखा हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So trapezium का definition is a quadrilateral where exactly one pair of opposite sides are parallel. Clear है? Yes. And there is one more term called isosceles trapezium. क्या है? Isosceles trapezium. Isosceles trapezium का मतलब है one pair of opposite sides are parallel and the other pair of non-parallel sides should be equal. ये दोनों का लेंथ इक्वल है तो we call it a isosceles trapezium. तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहला, हम दूसरे पेज में फिर मैं isosceles trapezium एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेपीजियम तक नोट कर लिया? Yes. सर एक बार पिछले वाला पेज दिखाइए। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। Quadrilateral where exactly one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. हो गया बेटा? Yes, sir.
देखिए बेटा, यूजुअली ट्रेपीजियम में क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है, these two are parallel. ऐसा जरूरत नहीं कि द अदर पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। देखिए ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ना आपको। These two are parallel to each other, but the other two non-parallel sides are not equal. समझ में आ रहे? Usually trapezium में it's not necessary that these two should be equal. But isosceles trapezium का मतलब क्या है? अगर गलती से ये और ये बराबर हो गया, मतलब AB is parallel to CD and AD is equal to BC, then it is called a what? Isosceles trapezium. समझ में आ रहे? क्लियर है? Is it clear? Yes, sir. So these are different types of parallelograms and quadrilaterals that you have. So next होगा आपका properties. हर एक फिगर का क्या क्या properties होगा. So first properties of a parallelogram. Parallelogram का क्या क्या properties होता है. देखिए मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD. So what are the properties? First is AB parallel to CD and AD parallel to BC. सही है क्या नहीं? ये दोनों पैरेलल होना चाहिए और ये दोनों Yes, sir. पैरेलल होना चाहिए, राइट? Yes. Next property, opposite sides are also equal in length. Opposite sides जो है, they are not just parallel, they are equal also in length. And third, opposite angles are equal. देखिए एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होने का जरूरत नहीं है, बट ऑपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होगा. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. क्लियर है? ऑपोजिट Yes, sir. angles are equal. Fourth, diagonals bisect each other. क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब है AC एक डायगोनल है, राइट? BD इज अ डायगोनल. दोनों मान लीजिए P पे मीट हो रहे हैं. Assume that both are intersecting at P. P will be the midpoint of AC as well as BD. इसका मतलब है AP equal to PC होगा and BP is equal to PD होगा. Bisect each other का मतलब समझ में आ रहा है? This P will be the midpoint of AC as well as BD. ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? Diagonals bisect each other का मतलब. Yes, sir. Yes, sir. So these are the properties of a parallelogram. इसका proofs भी बहुत easily कर सकते हैं. आपको ये वाला आया था 7th क्लास में, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट किया तो
alternate interior angles are equal, Yes, sir. corresponding Yes, angles are sir. equal. आया है ये वाला Yes, theorem? sir. Yes. Yes, sir. sir. तो ये वाला theorem को यूज करके ये वाला प्रूफ कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. पर मैं try. Yes, sir. And दो triangles कब congruent है पता हो? Congruency of triangles हो गया? Yes, sir. हम्म? Yes, Yes. sir. SSS congruency, SAS congruency वो सारा. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हो गया तो ये सारा चीजें जो है बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं आप. कुछ सैंपल प्रूफ्स करता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप बाकी अपने से कर सकते हैं. यहाँ तक नोट कर लीजिए. Sir, कर लो. Sir, done. Sir, done. बाकी लोग कर लीजिए. निकाल रहा हूँ बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका प्रूफ जो है, मान लीजिए यू हैव ए पैरेललोग्राम विथ यू, ए बी सी डी. तो पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन है ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, राइट? इज अ बेसिक डेफिनेशन. Now if you draw the diagonal AC, मान लीजिए AC ड्रॉ किया आपने, you have drawn AC. अब ये वाला एंगल जो है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको एक डायगोनल ट्रांसवर्सल मान लिया, तो दोनों एंगल सेम होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alternate Yes, sir. interior Interior angles, angles. right? Yes, Yes, sir. sir. अब ये दोनों भी पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये वाला एंगल किससे बराबर होगा? इससे बराबर होगा, DAC. right? And this side is common. Yes, Yes, sir. sir. So in triangles ACD and triangle ACB, AC is equal to AC, angle BAC is equal to angle BCA, angle DCA is equal to angle CAB. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा? Side angle side. Sir. So side No, angle. side So angle. triangle Not side angle. ABC is ऐसे- congruent to triangle ADC by ASA congruency, right? Yes, sir. So once these two triangles are congruent, CPCTC होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. CPCTC का मतलब क्या है? Corresponding Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Clear है? So दोनों में AC का opposite angle, angle B is equal to angle D हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, opposite angles जो है वो equal होगी. एंड आप देख सकते हैं एंगल A is equal to angle CB हो गया ऑलरेडी, क्योंकि एंगल A is green plus red, angle C is also equal to green plus red. So opposite angles are equal proof हो गया. Easy? एंड Yes, sir. corresponding sides देखिए, triangles में AB is equal to CD हो जाएगा, AD is equal to BC हो जाना चाहिए. Corresponding sides. So opposite sides are also equal. समझ रहे? Yes, sir.
एंड थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कैसे प्रूव करेंगे? दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं. I'm also drawing the other diagonal, let them meet at P. So can you prove that these two triangles are congruent? ये वाला ट्रायंगल congruent प्रूव कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. क्योंकि AB is equal to CD अभी प्रूव किया हमने. इसके बाद Yes, रेड sir. एंगल, ग्रीन एंगल, फिर ASA Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABP is equal to ट्रायंगल CPD हो जाएगा. So this implies AP is equal to PC, BP is equal to PD. Diagonals bisect each other भी proof हो जाएगा. Is it clear? So these are the properties of a parallelogram. So आपका टेक्स्ट बुक में सारा दिया गया है. So you just need to go through these properties. So in a parallelogram क्या क्या है? The opposite sides are equal, the opposite angles are equal, and diagonals bisect each other. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you show the page again? Can you? Sir, the page. पेज चाहिए क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ्स जो है आपका टेक्स्ट बुक में भी है, ये आप बाद में टेक्स्ट बुक देख सकते हैं. क्लियर है? Sir, done. डन. Sir, done. Yes. सर ये जो प्रूफ सब है ये भी कॉपी में लिखना है क्या? हाँ, लिख लीजिए सब कुछ. सर एक लड़का लगता है घुस नहीं पा रहा सर. क्या है बेटा? सर एक लड़का घुस नहीं पा रहा है. कौन? सर सायन रॉय. हाँ ठीक है, अभी आ गया. Sir, I am in. ये नोट कर लिया बेटा सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. सो वैसा ही आपका बाकी फिगर्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज है. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. देखिए यहाँ ये भी दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, a quadrilateral is a parallelogram if the opposite sides are equal. नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए. बट अगर क्वेश्चन में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिया, then also you can conclude that it is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if the opposite angles are equal. इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम हो जाएगा. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्लियर है? So these are not just properties in one direction. पैरेललोग्राम है तो
ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड अगर इसमें कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखिए, रिमार्क, ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर एंड ए rhombus आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। So all the properties of parallelograms are satisfied by each one of them. सही कि नहीं? अगर आपका स्कूल का कुछ रूल है तो Yes, sir. सारा क्लासेस सारा सेक्शन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना उसको। Yes, sir. समझ में आ रहे? So because all these figures are special types of parallelograms, so parallelograms का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? एंड रेक्टेंगल का डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या होगा? यूजुअली पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होने का जरूरत नहीं, एक लंबा डायगोनल होगा एक छोटा डायगोनल होगा पैरेललोग्राम में। बट रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? बोथ द डायगोनल्स बिकम इक्वल। समझ रहे? तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम में एक लंबा डायगोनल होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है। समझ रहे? बट विन दिस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल, ये बड़ा वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, ये छोटा वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, सच दैट द लेंथ हैज बिकम इक्वल। Okay, sir. ठीक है? इन ए रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्टिंग जो है वो अभी भी काम करेगा, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा जो है डायगोनल्स विल बी इक्वल। एंड रोम्बस में क्या है, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होने का जरूरत नहीं है, बट डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है? रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। एंड स्क्वायर में क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज रोम्बस, सो डायगोनल्स इक्वल भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। समझ में आ रहे? Yes, sir. सो पैरेललोग्राम का सिर्फ इतना ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल में बाइसेक्टिंग के साथ साथ डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल होगा। रोम्बस में बाइसेक्टिंग के साथ साथ डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा। देखिए रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होने का जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा रोम्बस ड्रॉ किया तो ये लंबा डायगोनल है, ये पतला छोटा डायगोनल, बट angle between them will be 90 degrees. And in a square, lengths will be equal as well as angle between them is 90 degrees. Clear? बट ये प्रॉपर्टीज जो है वो उल्टा काम नहीं करेगा। देखिए so diagonals of a square are equal, bisect each other at right angles. But note देखिए, if the diagonals of a quadrilateral are equal, then it is not necessarily a rectangle. Diagonals अगर bisect किया तो वो parallelogram compulsorily हो जाना चाहिए, but just because the diagonals are equal, it need not be a rectangle. If the diagonals of a quadrilateral intersect at right angles, it is not necessarily a rhombus. Rhombus में diagonals 90 degrees पे intersect करेगा, but just because the diagonals intersect at 90 degrees
the quadrilateral need not be a rhombus. The diagonal properties जो है they'll work only in one direction. They need not work in the other direction. ये हुआ तो वो होगा, बट वो होने से ये होने का जरूरत नहीं है. समझ में आ रहे? ये थ्योरी पार्ट समझ में आया क्वाड्रिलेटरल्स का, अब सॉरी पैरेललोग्राम्स का. Yes, sir. Yes, I want you to go through your Yes, sir. textbook. I want you to go through your textbooks. ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक्स में देखिए एक बार सारा Okay, sir. पूरा A to Z पढ़िए. So we have almost completed the theory of parallelograms. Next class में हम Sir, इसका questions करके we'll go forward. हाँ बोलिए बेटा. sir, हाँ. sir, I have a problem in one question. क्या है बेटा? सर मैं दिखा सकता हूँ? हाँ स्क्रीन शेयर कर लीजिए, एक सेकंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है, हाँ आप स्क्रीन शेयर फोटो करके स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं बेटा, आप थोड़ा सा इजी होगा. ओके वैसा है क्या? सर नहीं मैं हाँ ठीक है, मैं समझ में दिखा आया, रहा हूँ. समझ में आया. तो इजी है ना बेटा, उसमें दिक्कत क्या हुआ? तो पैरेललोग्राम में एक 16 एक 20 दिया था ना. यस सर. ये समथिंग लाइक सर उल्टा, सर उल्टा. हाँ, ठीक है. सर 22 ऊपर दिया था. 2016 यस सर. एक है y+7, दूसरा x plus y. x+y है ना. यस सर. तो आपका पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यस सर. सो y+7 कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए. 20. तो y इज इक्वल टू कितना? 13 होना चाहिए. यस सर. एंड x+y कितना होना चाहिए? 16 से बराबर होना चाहिए, है ना. पैरेललोग्राम में क्या देखा? दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. तो y ऑलरेडी 13 है, तो x कितना होगा? 3. समझ में आया नहीं? यस सर. थैंक यू. Yes, sir. ओके. थैंक यू सर. हाँ ओके बेटा. सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. जहाँ तक हुआ वहां तक समझ में आया ना? yes, sir. यस सर. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे यहाँ से. क्लियर? Okay, sir. बाय बेटा सबको. बाय Good सर. night. थैंक यू Thank you, सर. sir. गुड Bye. नाइट. Bye, sir. Thank you, गुड sir. नाइट सर. Thank you, sir. Bye, sir.